now as your exams or that tests are not even fixed up to now, there is no fixation of the date, and even if these are postponed, then also there is no information. So whenever that information that we will get, especially I will let you know. By the time you must be in touch with the all the 4 chapters, because that will be the syllabus for your upcoming any of the test. So ये टच में रहना. एंड अबाउट द लास्ट चैप्टर, जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर्स किस किसने कर लिए? जस्ट रेज द हैंड्स. दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. इसके रिटर्न जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, स्पेशली एट द बैक ऑफ द एक्सरसाइज और एट द बैक ऑफ द चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज है किस किसने कर ली? जस्ट रेज द हैंड्स. नो वन, किसी ने भी नहीं की. वेरी गुड, commendable job you have done. Many time, or rather always I keep telling that you should cover the written part parallelly. Parallelly in the sense, जब हम syllabus करवाते रहते हैं, that time only you should write this written part. साथ के साथ written का काम करते रहना चाहिए. और नहीं करोगे then अभी अनिल को पूछो या फिर जिसने भी बाद में किया है, you should ask them कितनी तकलीफ होती है एक साथ में जब काम किया जाता है that time. Okay, Tushar, you tell me the definition of mineral. How you can define mineral? Yes, Tushar. Tushar. Yes, sir. Yes, sir. You just give me the definition of mineral. How you can define mineral? Sir, minerals are the substances which are found in the ground. Found in? Ground. Ground is means football ground or hockey ground or cricket ground. In earth, inside the earth. Okay, naturally occurring substance. Yes. For example, coal, oil, salt, etc. That's all. In the definition part, you have not covered the complete definition. So these are the naturally occurring inorganic and organic substance having orderly atomic structure and having again chemical and physical property. These are found in mixed form mostly, but in single form also some of the minerals are occurring. Okay, Gunjan, you tell me, as I said that maximum minerals are found in mixed stage. That is, these are found in that 2 or more elements, but some of the minerals are found in a single state. Can you give me the example of such type of minerals which are found exclusively in a single form? Some of the examples that yesterday we have discussed. So I'm not attending class yesterday. So you must have seen that recording. Yesterday I sent recording also. Okay, then Pankaj. So मैंने नहीं देखी है. तो अब मैं इतना कष्ट करता हूँ उसको अपलोड करके भेजता हूँ, then you must see. थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो इन चीजों के लिए. Okay, पंकज, you tell me, कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो मिक्स फॉर्म में नहीं, वो सिंगल फॉर्म और सिंगल स्टेट में पाए जाते हैं? एग्जाम्पल. सर गोल्ड.
Okay. Gold, silver, copper, sulfur, then graphite. These are the minerals which are found in a single state. Okay. Yes, Anshul, you tell me, in nature, how many minerals are identified and that have been given the name? How many minerals are identified in nature? There is a number yesterday we have discussed. Anshul. Sir, nearly 4,000. Very good, very good, very good. Anyone who can tell me the correct answer? क्या भाई कल रिजल्ट की खुशी में कुछ पढ़े नहीं क्या? Okay. Organization, Complete. Combined that in both the categories. How many minerals were identified and even given the name? So that is around 2000. 2000 out of that six are major minerals, and these are better known as rock forming minerals, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. Then उनका classification, everything we will cover. Okay. Then comes some of the physical features or physical characteristics also we have discussed. तो इसमें हार्डनेस, एक हार्डनेस की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, उसमें सबसे हार्ड एंड सबसे सॉफ्ट, बाकी को छोड़ो, सबसे हार्ड एंड सबसे सॉफ्ट जो मिनरल्स हमने डिस्कस किए थे, दैट यू टेल मी. यस, तुषार विल टेल मी सबसे सॉफ्ट मिनरल और सबसे हार्ड मिनरल का एग्जांपल बताओ. तुषार. सर सबसे सॉफ्ट. हाँ, सबसे सॉफ्ट. सर सबसे सॉफ्ट तो है टैल्क. Very good. Talc is the softest mineral. Okay, then hardest mineral. And the hardest, सर नहीं पता hard. क्या बात करता है? सर डायमंड. हाँ. Yes, that is diamond. तो डायमंड सबसे हार्ड है और सॉफ्ट है, that is talc, जिसको हम talcum पाउडर बनाने में यूज करते हैं. Okay, so this is the one of the physical characteristics of minerals. Then other than even transparency is also a physical feature. What is transparency? And it is classified in 3 parts. Which are those? Transparency जो इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसका क्या मतलब होता है? Yes, Anil, you tell me what is transparency? These are the basic words. You should know. Transparency क्या होती है? Transparent क्या किसको बोला जाता है? ये सारे के सारे बापूजी के बंदरों की तरह गूंगे बहरे अंधे कैसे बन गए भाई? These are the sensible answers. You should tell. Okay, Tushar, you want to tell? जिसका आर पार देखा जा सके. सर जिसका आर पार देखा जा सके. So this is the, you can say literally or play in a plain language, you can see that this जो आर पार दिखाई देता है. In that sense, हमारे जो minerals की बात आती है, तो light rays are passing through a mineral. That is known as transparency. और transparency उसकी characteristics है. This mineral के अंदर जो light rays हैं वो penetrate means पार हो सकती हैं. That is transparency. Then what is translucent? Yes, Ananya, what is translucent? Yes, Ananya.
Are you physically present in the class? Ananya? If you are not replying, then I suspect that you are available physically in the class. Not replying, that means same. Okay, Anshul. Translucent क्या होता है? Is there any problem in my voice? I am not audible, that means किसी से रिप्लाई नहीं आया, that means yes. गुंजन, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Then Ananya, Anshul, why don't you reply? At least you should say no if you are not knowing. I suspect that again ये कनेक्शन के बाद में जो मोस्टली बच्चे करते हैं. यस तुषार, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? The translucent is allowing light to pass through but not transparent. Okay, that light is diffused. उसमें से पास तो होती है बट वो बीच में डिफ्यूज हो जाती है. Then one more characteristic is there in that transparency, and that is opaque. What is opaque? Opaque क्या होता है? That these are the science terms you must have read in 10th class. फिजिक्स में पढ़ा होगा ये. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक. यस, ओपेक क्या होता है तुषार? क्या सर? opaque? Yes, opaque. They are very simple पता सर. rays, light rays that cannot pass through the mineral. कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से लाइट पास नहीं होती है, हम आर पार नहीं देख सकते हैं. दैट इज अपोजिट ऑफ ट्रांसपेरेंट. दिमाग नहीं लगाते हो यार. सभी नहा धो के आए हो? योर माइंड इज फ्रेश. टुडे आई फाइंड दैट ऑल द स्टूडेंट्स they are not belonging to my 11th arts except तुषार. आज तुषार ने अच्छे से आंसर दिया है. rest all are simply keeping mum, not replying. That means you have not seen that video which I sent, and even you have not gone through the topic what we have covered from the book itself. न तो बुक पढ़ी है, न ही तुमने ठीक से सुना होगा कल, और न ही तुमने वीडियो या फिर क्लास की रिकॉर्डिंग जो भेजी वो भी नहीं सुनी होगी. So that should not be the culture of our class. And yesterday I find I listened some complaints about the attendance of this class in English. नायक सर की तो पहले से प्रॉब्लम थी. इंग्लिश में भी मुझे कल प्रॉब्लम मिली है कि जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं वो ज्वाइन कम करते हैं. बहुत ही कम बच्चे हैं जो इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करते हैं. दिस इज नॉट गुड. डोंट गिव सिली एक्सक्यूजेस दैट सेम जो एज यूजुअल सभी देते हैं कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, देन मोबाइल की प्रॉब्लम है, व्हाट एंड व्हाट नॉट. दीज प्रॉब्लम्स शुड नॉट कम इन द पिक्चर. ओके, यू मस्ट ज्वाइन ऑल द क्लासेस enthusiastically, means with a full enthusiasm you should attend all the classes, whatever these classes are being taken by the teachers. Okay, then comes some of the major minerals out of 2000, as it is told that some six major group of minerals which are quite important and which are better known as soil forming or major rock, so not soil forming, major rock forming minerals. So इन minerals के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कितने % अपने क्रस्ट का पार्ट बनाते हैं, and which are the different colors of these type of major minerals. तो इनकी characteristics one by one we'll see. That first one is feldspar. feldspar एक इस टाइप का मिनरल होता है विच इज मोस्टली वाइट एंड
red in color. You must have seen in some of the hilly areas जिनके अंदर रेडिश कलर की रॉक्स होती हैं, एंड इवन सम आर whitish in color. सफेद और रेड कलर की जो रॉक्स होती हैं, इन दैट वी कैन से दीज आर नोन एज फेल्डस्पार मिनरल्स. और इनमें जो सब मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? How that is silicon and oxygen. Silicon and oxygen, these elements are common in feldspar, mostly or all type of feldspar, type of minerals, but other sub minerals like sodium, potassium, calcium, aluminium, these are found in specific type of feldspar minerals. जो बाद वाले ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन तो लगभग सभी टाइप के फेल्डस्पार मिनरल्स में पाए जाते हैं एलिमेंट्स, और जो बाकी जो हैं दैट इज सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये जो हैं ये कुछ ही फेल्डस्पार मिनरल्स में पाए जाते हैं ये एलिमेंट्स. ओके, इनके कलर की बात करें तो ये मोस्टली इनका जो कलर होता है वो अलग अलग, अगर देखें तो वो लगभग पिंक कलर में या लाइट क्रीम कलर में ज्यादातर ये फेल्डस्पार मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि वाइट एंड रेड रॉक्स जो होती हैं उनके अंदर मोस्टली पाए जाते हैं, जिनके अंदर सिलिकॉन एंड दैट ऑक्सीजन, दीज आर कॉमन एलिमेंट्स which are found in almost all type of feldspar minerals, whereas sodium, potassium, aluminium and calcium, these are found in specific feldspar minerals. Then दूसरा है quartz. तो quartz जो mineral है that is the most important component of the sand and that is granite. जो sand और granite है उसके अंदर ये quartz जो mineral है that is the most important component. It consists mainly silica. जो सिलिका एलिमेंट है वो ज्यादातर क्वार्ट्ज वाले मिनरल में पाया जाता है, एंड इट इज क्वाइट हार्ड मिनरल. ये काफी हार्ड मिनरल में काउंट होता है, एंड इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर. नेचुरली जो मिनरल हार्ड होगा वो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता. सो दिस इज कंसिस्टिंग सिलिका मेनली, एंड इट इज क्वाइट हार्ड एंड इनसोल्यूबल इन वाटर. इट इज मोस्टली वाइट और कलरलेस. ये या तो वाइट कलर में होता है या फिर इसका कोई कलर नहीं होता है. देन मोस्टली दिस क्वार्ट्ज मिनरल दैट इज यूज्ड इन रडार्स एंड रेडियोज. ये जो रेडियो हमारे ट्रांजिस्टर सिस्टम होते हैं एंड इवन रडार्स जो होते हैं ये इनके अंदर यूज किया जाता है दिस टाइप ऑफ मिनरल दैट इज क्वार्ट्ज. ओके, सो next is that is pyroxene. Pyroxene, that is the third category of the mineral. It consists of calcium, aluminium, magnesium, iron and silica. तो pyroxene जो मिनरल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? that is calcium, magnesium, aluminium, iron and silica. These are the major elements found in pyroxene minerals. ये जो pyroxene है this is you can say constituting 10% of earth crust. जो हमारा अर्थ का क्रस्ट का जो पार्ट है उसमें 10% pyroxene minerals जो हैं वो constitute करते हैं पूरी की पूरी क्रस्ट के अंदर. ओके, then it is commonly found in meteorites. meteorites क्या होते हैं? You know that जो उल्कापिंड एस्टेरॉइड से छोटे साइज में जो पार्टिकल्स होते हैं which are moving in that space, and sometimes these are that falling on earth also, that is known as meteors. तो ये meteors जो मटेरियल होते हैं उनमें ज्यादातर ये पायरोक्सिन जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं. सो मोस्टली इट इज ग्रीन और ब्लैक इन कलर. जो पायरोक्सिन जो मिनरल होते हैं these are mostly in these two colors, that is green or black. Then comes amphibole. Next group is amphibole. So this amphibole is containing aluminium, calcium, silica, iron,
magnesium. So these are the major elements in the amphibole minerals. These are constituting 7% of our earth crust. जो पायरोक्सिन जो थे ये 10% कॉन्स्टिट्यूट करते थे अर्थ क्रस्ट को, और जो एम्फीबोले जो मिनरल्स हैं ये करते हैं 7%. सो दीज आर द 1 मार्क क्वेश्चन. ये जैसे पायरोक्सिन कितने परसेंट अर्थ क्रस्ट में होते हैं, देन एम्फीबोले कितने होते हैं, सो दैट यू मस्ट अंडरलाइन दीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ओके, देन अगेन एम्फीबोले दैट इज आल्सो फाउंड इन ग्रीन और ब्लैक कलर. ये जो एम्फीबोले होते हैं ये भी, इनका कलर भी या तो ग्रीन होता है या फिर दैट इज ब्लैक इन कलर. बट दीज आर स्पेसिफिकली यूज्ड इन एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज. ये जो एस्बेस्टस की चादरें होती हैं जो हम घरों के ऊपर डालते हैं टिन के रूप में, जो एस्बेस्टस की चादर होती है, दैट मटेरियल वेयर इट इज मेड इन द मैक्सिमम इंडस्ट्रीज, उन इंडस्ट्रीज में एम्फीबोले मिनरल्स यूज किए जाते हैं. ओके, देन माइका. नेक्स्ट इज माइका. सो माइका इट कंप्राइजेज पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका. ये जो पायरोक्सिन, एम्फीबोले एंड जो माइका है, इनमें जो एलिमेंट्स जो हैं दीज आर ऑलमोस्ट कॉमन. तो इसमें माइका में क्या क्या पाया जाता है? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, iron, silica and magnesium. So it constitutes 4% of our earth crust. तो माइका जो है वो अर्थ क्रस्ट का कितना पार्ट होता है? दैट इज 4%. एक हो गया 10, दूसरा 7 एंड थर्ड वन माइका इज 4%. इट इज कॉमनली यूज्ड इन igneous, or sorry, it is commonly found in igneous and metamorphic rocks. That we will discuss in later part कि कितनी टाइप की रॉक्स होती हैं. तो ये जो माइका जो है that is mostly found in igneous and metamorphic rocks. इसका कलर क्या होता है? इसका कलर मोस्टली ट्रांसपेरेंट टाइप का जिसको हम क्या बोलेंगे, कलरलेस. देन इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. ये जो माइका जो है ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादातर यूज किया जाता है. दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. माइका शीट, इसकी जो पतली पतली शीट बन जाती हैं, दैट यू मस्ट हैव रेड इन 10th क्लास आल्सो इन द मिनरल्स चैप्टर. तो ये जो माइका है ये इसका यूज क्या है? दैट इज मोस्टली यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. देन फाइनली 6th मिनरल ग्रुप इज ओलिविन. ओलिविन क्या होता है? इन दिस मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, these are the 3 major elements found in this olivine group. Then these are greenish in color. ये इसका लगभग ग्रीनिश कलर होता है, लाइट ग्रीन वी कैन से दैट, एंड इट इज मोस्टली यूज इन ज्वेलरी. जो ज्वेलरी बनाते हैं लोग, उसके अंदर ये ओलिविन जो मिनरल्स है ये यूज किए जाते हैं. ओके, अदर देन दैट, ये तो 6 ग्रुप हो ही गए. इनके अलावा भी कुछ मिनरल्स इसमें बता रखे हैं. उनमें से वी कैन से दैट सम आर क्लोराइट, कैल्साइट, देन मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट एंड बेराइट. दीज आर द अदर मिनरल्स found other than these 6 major category of that minerals. Then comes the classification of minerals. That also you must have covered in your 10th class. There are 2 type of minerals, metallic and non-metallic. Very simple. Metallic means the minerals which are containing any type of metal. Non-metallic means these type of minerals doesn't or that do not have any type of metal. So uska classification further we can classify the metallic minerals into 3 categories. जिनमें मेटल होता है उनको हम 3 कैटेगरीज में अलग से क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस एंड प्रीशियस मेटल्स. दैट इज वी कैन से प्रेशियस metallic mineral, then
फेरस मेटेलिक मिनरल एंड नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल। अब हम बात करते हैं फेरस। फेरस का मतलब होता है Fe। Fe इसमें होता है, Fe दैट इज द सिंबल ऑफ, Fe किसका सिंबल है भाई, 10th में पढ़ा होगा फिजिक्स में। Fe किसका सिंबल है, पंकज बताएगा। Fe जैसे Cu का कॉपर होता है, वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज आयरन। दैट मीन्स जिन मिनरल्स के अंदर आयरन कंटेंट्स होंगे, दीज मिनरल्स आर नोन एज फेरस मिनरल्स। ओके, जिसमें हम फेरस मिनरल्स में जो आयरन होता है, मैंगनीज होता है, कोबाल्ट होता है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, दैट इज फेरस मिनरल्स। देन दैट इज नॉन फेरस, जिसमें आयरन कंटेंट्स नहीं होते हैं। आयरन जिसमें नहीं होता है लाइक कॉपर, देन लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, इनमें आयरन नहीं होता है। कॉपर में आयरन नहीं होता है, एल्यूमिनियम में आयरन नहीं होता है, जिंक में आयरन नहीं होता है, और लेड में भी आयरन नहीं होता है। सो दीज आर द नॉन फेरस मिनरल्स। मीन्स जिसमें Fe होता है वो फेरस मिनरल्स हो गए, जिनमें Fe नहीं होता है दीज आर नॉन फेरस मिनरल्स। देन कम्स प्रीशियस मेटल और प्रेशियस मिनरल्स जो होते हैं, इनमें हम गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड इवन टिन, ये हमारे जो मिनरल्स हैं ये प्रेशियस मिनरल्स में आते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड इवन टिन ऑल्सो। So this is classification of metallic minerals. Then comes non-metallic. As the by name itself we can say that जिनमें किसी भी टाइप की मेटल नहीं होती है, जिसमें मेटल कंटेंट्स नहीं होते हैं, जिसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं सल्फर, देन दैट फॉस्फेट एंड इवन नाइट्रेट्स। सल्फर, phosphates and nitrates, these are the example of non metallic minerals, जिसमें हम सीमेंट को भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स में डाल सकते हैं, बट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इज जिप्सम एंड लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन एंड जिप्सम ये जो है इनका मिक्सचर होता है, सो दैट वी कैन से इट इज ए मिक्सचर ऑफ दीज। Then comes our rocks. Now we will study about the rocks. अब बात आती है rocks क्या होती है। हमने देखा कि the minerals are thus consisted in rocks, or rocks are that composed of different type of minerals. अब हम देखें तो our crust area is composed of different type of rocks. अब rocks में again हम अगर इसको और डिफाइन करें फर्दर, देन इट इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। रॉक्स आर consisted in different type of rocks. Well, तो ये this was about the rocks. So again rocks are, some are soft rocks, some are hard rocks. So in that case again rocks की बात करें तो जो सॉफ्ट एंड हार्ड की बात करें तो ये अलग अलग टाइप की रॉक्स होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं, एंड दीज रॉक्स आर अगेन फाउंड इन डिफरेंट कलर्स ऑल्सो। इनके कलर्स अलग अलग होते हैं, जिसमें हम अगर देखें तो ग्रेनाइट जो रॉक्स होती है दैट इज क्वाइट हार्ड, एंड सोपस्टोन जो रॉक्स होती हैं वो दैट इज क्वाइट सॉफ्ट। तो हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक के एग्जांपल भी हम दे सकते हैं। ग्रेनाइट इज द हार्ड रॉक एंड दैट सोपस्टोन जिससे सोप बनता है दैट इज द सॉफ्ट दैट रॉक। देन कलर की बात करें तो गैब्रो इज ए मेटामॉर्फिक रॉक जो कि ब्लैक कलर में होती है। देन क्वार्जाइट
क्वार्जाइट दैट कैन बी मिल्की वाइट। जो क्वार्जाइट जो नाम की एक रॉक होती है वो मिल्की वाइट कलर में होती है। सो इस टाइप से इनकी कलर और इनकी हार्डनेस के बारे में बता सकते हैं। देन द रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। So rocks are classified into 3 categories. First one is igneous rocks, second one is sedimentary rocks, and third one is metamorphic rocks. इन तीनों रॉक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये रॉक्स कैसे बनती हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और ये जो रॉक्स होती हैं फर्दर दीज रॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ रॉक्स, वो भी हम इसको पढ़ेंगे। देन ये किस किस टाइप के एरियाज में पाई जाती हैं दैट ऑल्सो वी विल सी। सो इसमें अगर हम देखें तो one term we can say, or one we can say amazing fact we can say that then the science of rocks is known as, that is petrology. जो rocks की science है that is known as petrology। और वो जो साइंस पढ़ते हैं रॉक्स की, जो साइंस के बारे में पढ़ते हैं, उन लोगों को बोलते हैं पेट्रोलॉजिस्ट। सो पेट्रोलॉजिस्ट दे आर स्टडिंग अबाउट द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रॉक्स इन दैट जियोग्राफी वी कैन से दैट। तो ये किस किस एस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं जो पेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स की कंपोजिशन है कि किस किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, उनकी टेक्सचर क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, उनका एक्रेंस कहाँ कहाँ पर है, उनका अल्ट्रेशन, उनका मीन्स अल्ट्रेशन मीन्स जो शुरू में रॉक्स होती है वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है। देन इवन रिलेशनशिप विद द अदर रॉक्स, दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स which are studied by the petrologist about the rocks। तो ये इसमें है जो साइंस है रॉक्स की, उसको पेट्रोलॉजी बोलते हैं। और पेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो रॉक्स के बारे में स्टडीज करते हैं फॉर देयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। देन नेक्स्ट part we will cover in the next class, so by that time you can leave the meeting because time is almost over. So tomorrow we'll see if any information about the test, if it is coming, then I will let you know, otherwise we will continue with the same syllabus. Okay, so bye bye, God bless you, thank you for joining and listening so quietly without speaking anything. Okay, bye for the day. Thank you, sir. Okay.